Hello students, you are welcome to English for your success. And today I want to explain an elementary school classroom in a slum which has been written by Stephen Spender. I have told you about Stephen Spender, about the theme of the poem and what is the message this poem gives us in my previous lecture. Today we will read the poem line by line. I will try to explain everything in easy language. So let us begin it. The first stanza that we have here is beginning from a repetition. Far, far from gusty waves. Far, far. Here we have repetition. And we have another figure of speech here, and that you can easily perceive. This is alliteration. F sound is being repeated in the two words. And repetition, we can say repetition as well as alliteration. Far, far from gusty waves. What is this gusty waves? Gusty means energetic, that has energy. Waves, waves of energetic wind or waves of sea. Far, far from gusty waves, these children's faces. Whose faces? These children's faces. These children's faces. ये जो चिल्ड्रन हैं, इन बच्चों के फेसेस जो हैं गस्टी वेव से बहुत ही फार हैं, बहुत दूर हैं इनके फेसेस. ये गस्टी वेव्स क्या है यहाँ पर? दिस इज अ मेटाफर हेयर. गस्टी वेव्स, दिस वर्ड हैज बीन used here for those children who have all the facilities. You know that children are full of energy. If children are getting all the facilities which they should get, they are always full of energy, they are full of happiness. We can see vibes of happiness and energy on their faces. So gusty waves here have been used, these two words have been used for rich children. So ये उनको उनके साथ कंपेयर करने के लिए वर्ड यूज किया गया. एंड गस्टी वेव्स फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ एनर्जी. तो इन बच्चों के चेहरे उस हैप्पीनेस से, उस एनर्जी से बहुत दूर हैं. दे डोंट हैव दैट हैप्पीनेस, दे डोंट हैव दैट energy on their faces. So the children's faces are far, far from gusty waves, means far, far from being happy, far, far from being energetic. Like rootless weeds. Now, like, the children are like rootless weeds. Which figure of speech do we have here? Like word जब यूज किया जाता है या as word जब यूज किया जाता है किसी को या किसी के साथ कंपेयर करने के लिए, वीड्स के साथ इनको कंपेयर किया इन बच्चों को. व्हाट इज वीड्स? वीड क्या होता है? वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, दोज प्लांट्स विच आर अननेसेसरी, जो हमारी क्रॉप्स के साथ हमारी इच्छा के खिलाफ वैसे ही उग जाते हैं. एंड दे आर नॉट लाइक्ड बाय अस एंड वी जस्ट पुल देम ऑफ, हम उनको उखाड़ के फेंक देते हैं. एंड इन हिंदी इट इज सेड खरपतवार. सो दी चिल्ड्रन आर लाइक वीड्स. वी हैव सिमिली हियर, like weeds. The children are like weeds, so these children have been compared with weeds. Why have these children been compared with weeds? Because they are not needed in the society. Which society? The society which has been created by rich people. These poor children are not wanted in this society and they are अननेसेसरी फॉर देम. सोसाइटी में इनकी कोई जगह नहीं है और इनको वीड की तरह ट्रीट किया जाता है. फालतू है ये. लाइक रूटलेस वीड्स,
their the hair torn round their pallor. Torn round their pallor. Pallor is used for their yellow face. Their face. This word has been used for their face. And why is their face pale? Because it is weak. It has no energy, and it is because of undernourishment. And their hair torn round their pallor. उनके बाल जो हैं वो इतनी गंदी कंडीशन में हैं कि वो उनके चेहरे पर बिखरे पड़े हैं. They are in a very miserable condition. The children, the poet is trying to depict the actual scene in front of our eyes. मीन्स हमें वो पिक्चराइजेशन करने की कोशिश कर रहा है अपने वर्ड से. हमें एक तस्वीर नज़र आ रही है कि किस तरह के बच्चे हैं ये. द टॉल गर्ल with her weighed down head. There is a girl in the class and she has her head weighed down. Means उसका जो सर है वो झुका हुआ है. Why? The poet has mentioned here that her face is tall. Sorry, she is tall. It means she is elder than other students, or her head is weighed down. It is clear here. Either she is feeling shameful, or she is overburdened because of poverty, or she is tired because of undernourishment. That's why there may be any reason out of them, and her head is weighed down. Her head is weighed down. The paper seeming boy. Now the poet is trying to tell us what is the condition of the class. There is a boy who is paper seeming, like paper. The boy is so thin that he has been compared with the paper. So here there is a comparison between a boy and paper. Which figure of speech do we have here? Metaphor, because we have not used like or as here. तो यहाँ पर metaphor है. The poet is trying to tell us the boy is as thin and as white as paper. White, why? Because that boy is bloodless. That boy is undernourished. ब्लड ही नहीं है उस बच्चे के अंदर, और इसीलिए उसको पेपर के साथ कंपेयर किया गया. कितना पतला लड़का होगा कि उसको पेपर के साथ कंपेयर कर दिया. एंड we can easily understand why is it, because of undernourishment. With rat's eyes, उसकी eyes जो है ना rats के जैसी है. Rat's eyes. Which figure of speech do we have here? Metaphor. उसकी आंखें ही rats की eyes हो गई, उस लड़के की आंखें. Why have his eyes been compared with rats? Because he is hungry and his eyes are in search of something to feed, to eat. He is greedy. भूखा है वो. That's why rat's eyes. rats जो होते हैं वो जनरली आपने देखा होगा ना, हमेशा वो किसी न किसी चीज की तलाश में होते हैं. That's why his eyes have been compared with rat. The stunted unlucky heir. Stunted that is not developed fully. The person or the thing that has not got full development. Unlucky heir. Heir means waris. The stunted unlucky heir of twisted bones. Twisted bones reciting a father's gnarled disease. So here one more boy, and that boy has inherited gnarled disease. Which disease? In this disease a person has twisted bones, like arthritis means हड्डियां मुड़ जाती हैं, इस टाइप की कोई बीमारी है. So we are clearly getting the idea what kind of condition the children have. ये बच्चे कुपोषित हैं, इन बच्चों में बीमारियां हैं, ये इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है. जनरली हम विरासत में क्या पाते हैं? हमें विरासत में
धन दौलत जमीन जायदाद मिलती है, हमें अपने माता पिता की रेपुटेशन मिलती है, बट what has he got in uh, as a heritage, he has got a disease. He is reciting. What is he reciting? He is reciting his father's gnarled disease and his lesson from his desk. Means the boy is differently abled and he can't stand. That's why he is sitting on his bench and reciting his lesson from his table. This word has been used, reciting, as a pun here, because it is doing two things here: reciting the lesson and reciting the disease given to him by his father. दो चीजें रिसाइट कर रहा है, उसको देख के कोई भी कह सकता है दैट ही दिस बॉय हैज गॉट दिस डिजीज एज अ हेरिटेज, इनहेरिटेड डिजीज मिली है इसको, एंड ही इज रिसाइटिंग हिज लेसन फ्रॉम द डेस्क बिकॉज ही इज नॉट एबल टू स्टैंड. So look at the condition of these children. They are undernourished, they are differently abled. At back, at back of dim class. Why is the class dim? It is clear that this class does not have lighting facilities. The class does not have proper ventilation as well as lighting facility. One unnoted, उस dim class में one unnoted sweet and young, एक और लड़का है जिसकी तरफ ध्यान नहीं है किसी का. दैट इज अननोटेड, स्वीट एंड यंग. वो सबसे छोटा भी है, बड़ा प्यारा है. स्वीट एंड यंग. हिज आईज लिव इन अ ड्रीम एंड हिज आईज आर फुल ऑफ होप. ऑल्दो दीज द चिल्ड्रन about whom we have studied till now, all were having a kind of depression and they were all pessimistic. But this boy is showing us a little hope. His eyes live in a dream of squirrel's game. Which kind of dream? Squirrel's game. He wants to play like squirrel outside in the of this classroom. Means he wants freedom. He wants to spend his day out of this gloomy and depressing class. He does not like this class. He wants to play like squirrel in tree room. Other than this means other than this classroom. So in this first stanza we have got that the condition of the classroom is very miserable. The children sitting in this classroom are undernourished. They have inherited diseases and they have been compared with rats because they are greedy, they are hungry. Some of them have been compared with rats, but one boy is there who has hopes, and it is because of that boy is very young. He does not know what is the harsh reality of the world. He is so young that he cannot understand what kind of condition he is living in. So वो बच्चा है अभी, उसे पता नहीं है, कितने ही गरीब इंसान का बच्चा क्यों ना हो, कि भिखारी का भी बच्चा क्यों ना हो, it does not know that he is a son or she is a daughter of a beggar. उनका एटीट्यूड जो होता है लाइफ के प्रति वो अलग ही होता है. जैसे जैसे उनको समझ में आता है that they are very poor, then they start showing these expression on their face. So this boy may be full of hope because of his young age. Next stanza, on sour cream walls. What kind of walls do these classrooms have? Sour cream walls. We know that these schools have been built by the money of donations. और जब इन स्कूल्स को बनाया गया होगा, उसके स्कूल बनाने के बाद इनकी तरफ किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया. मीन्स we rich people or the people who give some donations think that we have donated money and then we have done our part. We don't take care of it whether the money given by us is being implemented, is being used in a proper way. क्या हम जो योगदान दे रहे हैं उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है. और ऐसा भी हो सकता है कि दे गिव दिस डोनेशन टू शो ऑफ, बाद में उस तरफ वो ध्यान ही नहीं देते हैं. सो क्लासरूम की जो वॉल्स हैं वो डर्टी हैं,
बिल्कुल स्टार्टिंग में जो कलर होगा वाइट होगा, बट इट हैज बिकम वेरी डर्टी नाउ एंड नाउ इट इज अ क्रीम कलर, मीन्स मैला सा कलर हो चुका है, दैट्स व्हाई इट्स वोज आर सावर क्रीम। तो ये क्या शो करता है, व्हाट इज इट सिंबल ऑफ, इट इज द सिंबल ऑफ केयरलेसनेस, केयरलेसनेस टुवर्ड्स दीज चिल्ड्रन। सोसाइटी की इनकी तरफ कोई केयर नहीं है। जैसे इनकी वॉल्स डर्टी हो चुकी हैं, वैसे ही जैसे इनके ऊपर इनकी दीवारों पर मिट्टी चढ़ चुकी है, परत चढ़ चुकी है डर्ट की, वैसे ही इन बच्चों की भी जिंदगी धुंधली हो चुकी है। दे आर नॉट बीइंग केयर्ड बाय द सोसाइटी। शेक्सपियर्स हेड, उन दीवारों पर शेक्सपियर्स हेड है, शेक्सपियर की एक का एक बस्ट है, उसका धड़ है ऊपर का। और किस लिए हो, उसके कोई पोस्टर वगैरह, कोई पिक्चर वगैरह लगा रखी है वहां पर दीवार पर। सो व्हाट इज इट, शेक्सपियर्स हेड। शेक्सपियर्स हेड जो है, शेक्सपियर का मतलब क्या है, इफ यू टॉक अबाउट शेक्सपियर, it means that you are talking about the aristocratic families, you are talking about the kings and queens, you are talking about the princess, because he has written about those people only, he has written about the rich world। गरीबों के बारे में तो लिखा ही नहीं है शेक्सपियर ने, कोर्ट्स के बारे में लिखा, राज दरबार के बारे में लिखा उसने। तो यहाँ पर क्या है, ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, हेयर वी हैव सनकटकी। ये पूरे की पूरी अपनी एक अपने पूरे लिटरेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर शेक्सपियर। उसका एक सर का उसका एक पार्ट है, जब एक पार्ट पूरे होल को रिप्रेजेंट करे देन इट इज सनकटकी। तो शेक्सपियर का हेड जो है वो यहाँ पर किसको शो कर रहा है, उसके लिटरेचर को शो कर रहा है। और उसका लिटरेचर किसके बारे में है, रिच पीपल के बारे में। क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज डॉम, तो ये सीनरीज लगी हुई है, क्लाउडलेस एट डॉन, सिविलाइज डॉम, राइडिंग ऑल सिटीज़। सिविलाइज डॉम मीन्स एक सीनरी है, उसमें डॉम है जिसको हम गुबंद बोलते हैं। डॉम यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच, राइडिंग ऑल सिटीज़, सभी शहरों की सवारी कर रहा है, मीन्स इट हैज़ बिन पर्सोनिफाइड हेयर। भाई डॉम जो है वो राइड कर सकता है क्या, बट इट हैज़ हियर इट हैज़ बिन गिवन द ह्यूमन क्वालिटीज, इट इज़ पर्सोनिफिकेशन हेयर, मीन्स डॉम है एक। और क्लाउडलेस एट डॉन है, सूर्य उदय का समय है, सूर्य जो है वो क्षितिज पर दिखाई देना शुरू हो गया है, और बादल नहीं है आसमान में, और शहरों का नज़ारा है सीनरी के अंदर। और क्या है, बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, बेल्ड फ्लावरी टायरोलिस वैली, टायरोलिस वैली इज इन ऑस्ट्रिया एंड इट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स, इट इज़ फुल ऑफ चर्च। सो why why do the poet want why does the poet want to tell us about Tyrolis Valley? This is the painting on the walls of this classroom, and you know that Tyrolis Valley is a symbol of heaven on earth. It is full of beauty, it is full of flowers, it is full of fragrance, it is like heaven. But these children can never be a part of this kind of place, they can't go to this place in their lives. I want to show you the picture of Tyrolis Valley. This is the kind of scenery which pictures are depicted, shown, pinned upon the walls of this classroom. So the poet wants to contrast here, and these are the children. You can see this is not the actual picture of those that classroom. I just took it for showing you as an example. These kind of children are these. What could they get from these paintings? You can easily understand उनको ये पेंटिंग्स दिखाने का मतलब क्या है। दे आर अंडर नरिस्ड, उनको खाना खिलाओ, उनको बेसिक फैसिलिटीज दो। सो व्हाट इज द पर्पज ऑफ showing and these posters on the walls of these classrooms? And what some more things are there, open handed map, awarding the world its world. What does this show? एक मैप है जो ओपन हैंडेड है। what does the writer want to say here? The open handed map means this map is showing that
This map has been created by the rich and privileged people, the dictators of the world, and they have distributed all the things to rich people only, only the only the privileged people, and there is no mention of these slums. What is slum? An elementary classroom in a slum, मैंने आपको बताया नहीं. स्लम मीन्स एक गंदी बस्ती, झुग्गी झोपड़ियों वाली, जहाँ पर बिल्कुल गरीब लोग रहते हैं झोपड़ियाँ बना करके. तो ये स्लम्स कभी इस तरह के मैप्स में दिखाई नहीं दी जाती. There are the mentions of these maps mention only the beautiful cities, beautiful mega cities, and other beautiful things of the world. And yet for these children, these windows, not this map. Yet for these children, these windows, not this map, their world. Window is their world. Window is their world. So here विंडो को वर्ल्ड बना दिया है. सो हेयर इट इज मेटाफर. तो व्हाट डज द राइटर वांट टू से हेयर? भाई इन खिड़कियों से जो दिखाई देता है ना इन बच्चों को, वही उनका संसार है, वही रियलिटी है. इन बच्चों को आप इनके क्लासरूम की दीवारों पर जो पोस्टर्स दिखा रहे हो, ये पोस्टर इनका संसार नहीं है. इनका संसार इनको इनकी खिड़कियों से दिखाई देता है. एंड व्हाट इज आउटसाइड? उस विंडो से बाहर क्या दिखाई देता है? डर्टी स्लम, गंदी बस्ती, एंड होपलेसनेस, पॉवर्टी. these things are visible from these windows outside. और ये यहाँ पर एक एंटीथेसिस है कि भाई दीवारों पर तो है चकाचौंध, दीवारों पर तो है अमीर, रिचनेस को दिखाने वाली चीज़ें और ब्यूटी को दिखाने वाली चीज़ें, और बाहर है गंदगी. सो ये कंट्रास्ट कर रही हैं एक दूसरे से. उनकी खिड़की से जो नज़ारा दिखाई देता है वो उनकी क्लासरूम की दीवारों पर जो नज़ारा दिखाई देता है उसके साथ कंट्रास्ट करता है. सो व्हाट डज द राइटर वांट टू से हियर? ही वांट्स टू से कि इनकी खिड़कियों से जो चीज़ दिखाई देती है ना, वही इनका संसार है. जो इन पोस्टर्स में दिखाई दे रहा है वो इनका संसार नहीं है. दैट इज नॉट रियलिटी. वेयर ऑल देयर फ्यूचर इज पेंटेड विद अ फॉग. जहां पर इनका पूरा फ्यूचर जो है वो पेंटेड है किससे? फॉग से. सो फॉग इज अ मेटाफर हियर. व्हाई? बिकॉज fog has been compared here with hopelessness, uncertainty. यहाँ पर इनका फ्यूचर जो है ना बच्चों का, वो अनसर्टेन है. देयर इज नो होप फॉर देम. दैट्स वाई फॉग में क्या होता है? वी आर नॉट एबल टू सी क्लियरली वट इज इन फ्रंट ऑफ अस. हमारे सामने अब आगे क्या है ये हमें दिखाई नहीं देता. तो इन बच्चों का फ्यूचर भी दिखाई नहीं दे रहा. दैट इज ऑल्सो अनसर्टेन. तो इनका फ्यूचर अनसर्टेन है. वट दे आर गोइंग टू डू इन देयर लाइव्स. A narrow street sealed in with a lead sky. तंग सी गली है. नैरो स्ट्रीट sealed in with lead sky. lead sky कैसा आसमान? ऐसा आसमान. It represents the polluted environment. इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ये जो बस्तियां हैं ना, जनरली हम देखते हैं कि ऐसी बस्तियां कहाँ पर होती हैं? बड़े बड़े शहरों के आसपास ही होती हैं. और बड़े बड़े शहर जो होते हैं जनरली इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं. वहीं पर पॉपुलेशन होती है, वहीं पर शहर बसते हैं, वहीं पर. तो वो इंडस्ट्रीज के आसपास बड़े शहर वहीं पर होते हैं और ये गंदी बस्तियां वहीं पर बसती है. तो पॉल्यूशन है और उसी की वजह से स्काई लेड है. एंड इट इज ऑल्सो शोइंग अस दैट देयर स्काई इज लेड मीन्स देयर लाइफ इज their life is hopeless. There is nothing clear for them what they are going to get in their lives. तो इनकी गली जो है वो लिमिटेड है. ये इनकी लाइफ भी लिमिटेड है. स्ट्रीट जो है वो नैरो है, तंग गली है. मीन्स इनकी जिंदगी के अंदर अपॉर्चुनिटीज नहीं है और आशाएं भी नहीं हैं. लेड स्काई से ढकी हुई है. मीन्स बिल्कुल पूरी तरह से होपलेस है. एवरीथिंग इज अनसर्टेन. फार फार फ्रॉम रिवर्स. अगेन वी हैव repetition of far. We can say repetition, we can say alliteration. From rivers,
इनकी जो ये गंदी बस्ती है, दिस इज फार फार, बहुत दूर है, फ्रॉम रिवर्स, फ्रॉम केप्स, केप्स मीन्स a land, a part of land that has stretched towards the sea, तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ जो होता है उसको बोलते हैं केप्स। और चौथी तरफ जो होता है वो प्लेन होता है। तो हम कह सकते हैं कि सी बीच, समुद्र से बहुत दूर हैं इनकी बस्ती, रिवर से बहुत दूर है। दे डोंट गेट द अपॉर्चुनिटी टू गो एंड वॉच द ब्यूटीज ऑफ नेचर एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। व्हाट इज दिस स्टार्स ऑफ वर्ड्स? दिस इज अ मेटाफर हियर। किस वर्ड्स के स्टार? इट मीन्स रियल एजुकेशन, मीनिंगफुल एजुकेशन दैट कैन हेल्प देम ग्रो इन देयर लाइव्स। तो स्टार्स, वर्ड्स को कंपेयर किया है स्टार से, और वी कैन से स्टार्स हैव बीन कंपेयर्ड विद वर्ड्स। Words means education, and which education that can make them stars, that can be meaningful for their lives. So real education इनको नहीं मिल रही है, and they are confined to these slums only. It shows us that they have been cut off from the society and they have been trapped here, they have been confined here. ये यहाँ पर कैद हैं, they can't go out. These children have to remain here in a miserable condition. So the poet is feeling very miserable. The poet is full of grief, and he just making complaint to the society, and he's showing the actual picture of these slum children. So what does he want to say in the third paragraph? Surely Shakespeare is wicked. Here we have alliteration, s sound is being repeated. शेक्सपियर जो है वो बेकार है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, वाई इज शेक्सपियर विकेड? शेक्सपियर विकेड नहीं है, शेक्सपियर बुरा नहीं है, बट वाई इज दिस क्वेश्चन? वाई डज द पोएट से दिस कि शेक्सपियर विकेड है? ध्यान से सुनना इस चीज को। शेक्सपियर इज नॉट विकेड, बट शोइंग शेक्सपियर्स पिक्चर ऑन दिस डर्टी वॉल्स is wicked. Why? Because we will get the answer in the next line. The map a bad example. मैप जो यहाँ पर दिखा रखा है वो भी एक बैड एग्जाम्पल है। क्यों? इस मैप में इन स्लम्स के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ये मैप दिखा रहा है कि हाउ द वर्ल्ड इज फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, हाउ द रिच पीपल, हाउ द बाउंटीज ऑफ दिस वर्ल्ड इज आर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच पीपल। कितने अवसरों से भरा हुआ संसार, किस तरह से लोग खुशियों से जिंदगी जी रहे हैं, क्या क्या है इस संसार के अंदर। बट ये दोनों चीजें क्या, मैप भी और शेक्सपियर भी क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? विद शिप्स एंड सन एंड लव। शिप्स, शिप्स किस चीज का सिंबल है? शिप्स, ये सिंबल है रिचनेस का। और किस चीज का सिंबल है? एडवेंचर का। जनरली ये कहा जाता है कि जो रिच पीपल होते हैं ना वो बहुत लाइक करते हैं शिप से यात्रा करना। ओनली द रिच पीपल कैन अफोर्ड इट। सन, सन इज द सिंबल ऑफ लाइट, इट इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम। लव, लव, शेक्सपियर shows love in his plays. So all these things अपनी स्टोरीज में वो ये चीजें दिखाता है, इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है। तो ये सारी चीजें, दीज ऑल थिंग्स, तो ये अभी बता रहा है पोइट, वाई इज इट विक्ड, वाई इज इट बैड टू शो शेक्सपियर्स पिक्चर टू दीज चिल्ड्रन, एंड वाई इज इट बैड टू शो द वर्ल्ड मैप, द मैप ऑन द वॉल्स, बिकॉज दीज थिंग्स टेम्पटिंग देम टू स्टील। ये चीजें जो है ना बच्चों को ललायत करती हैं, दे अल्योर देम, दे इंस्टिगेट देम टू स्टील, चोरी करने के लिए। what is it? You know that these children have no opportunity in their lives, they are not being given real education also, so how can they get their dreams come true? वो अपने सपनों को कैसा पूरा करेंगे? सपने तो सभी देखते हैं, इच्छाएं तो सभी की होती हैं, आशाएं तो सभी की होती हैं, विशेष सभी की होती हैं, और जब उनके पास कोई रास्ता नहीं होता उनको पूरा करने का, दे गो ऑन रोंग पाथ, वो गलत रास्ते पे जाते हैं।
टू फुलफिल देयर विशेज, अपने ड्रीम्स को, अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो गलत रास्ता अपनाते हैं। तो दीज थिंग्स टेम्प देम टू स्टील, दैट्स वाई द पॉइंट इज शोइंग कि भाई ये शेक्सपियर की तस्वीर तुम दिखा रहे हो ना, ये इसको इनको ललायत करेगा, इंस्टिगेट करेगा। ये इसकी स्टोरीज जो हैं, ये विलियम शेक्सपियर की जो अपनी रिच वर्ल्ड को दिखाता है ना अपनी स्टोरीज से, ये सारी चीज़ें इनको ललायत करेंगी ऐसी ही ज़िंदगी पाने के लिए। बट दे आर नॉट बीइंग एजुकेटेड, इनको एजुकेशन नहीं दी जा रही कि वो एजुकेशन के रास्ते से जा करके अपनी उन इच्छा को पूरा कर ले। तो दे विल गो ऑन रॉन्ग ट्रैक एंड दे विल स्टार्ट स्टीलिंग। सो डोंट शो देम दीज पिक्चर्स for lives that slyly, why would they steal? They would steal for their lives, उस जिंदगी के लिए वो स्टील करेंगे जो slyly means secretly, slowly turn in their crammed holes. crammed holes Crammed holes have been used for their dingy cells, तंग झोपड़ी। एंड वाई हैव बीन दे कंपेयर टू क्रैम्ड होल्स, क्योंकि उनके अंदर इतनी ज़्यादा संख्या में लोग रहते हैं, छोटी छोटी झोपड़ियाँ होती हैं और लोग भरे होते हैं उनके अंदर, जैसे कि चूहों के बिल होते हैं। सो दीज होम्स हैव बीन, दीज हट्स, दीज डिंजी सेल्स हैव बीन कंपेयर्ड विद होल्स। सो हेयर वी हैव मेटाफर। तो अपनी उस जिंदगी के लिए चोरी करेंगे वो, अपनी उस जिंदगी को संवारने के लिए वो चोरी करेंगे जो चुपके से उन तंग बिलों में बंद हो जाती है। कहाँ से? फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। हेयर फॉग इज द सिंबल ऑफ अनसर्टेनिटी, इट इज द सिंबल ऑफ होपलेसनेस, एंड एंडलेस नाइट इज द सिंबल ऑफ grief, unending grief. So both here have been used as metaphors. Fog हेल्पलेसनेस के लिए, अनसर्टेनिटी के लिए, और एंडलेस नाइट, नाइट इज द सिंबल ऑफ ग्रीफ, अंधकार। जब हम ये बोलते हैं ना अंधकार छा गया जिंदगी के अंदर, तो दुख ही दुख छा गया। सो और नाइट, फॉग में तो अभी थोड़े बहुत चांसेस भी थे दैट इट इज अनसर्टेन, बट ये तो सर्टेन हो गया, नाइट हो गई। तो ऐसी जिंदगी, अभी तो वो बच्चे हैं, अभी तो अनसर्टेन है, बट व्हेन दे ग्रो अप, जब वो बड़े हो जाएंगे, तब तक उनके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके होंगे, एंड दे वुड नॉट हैव एनी चांस टू get any kind of opportunity to change their track, to change the track of their lives, so that they can also become responsible citizens। तो वो नाइट में बदल जाएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही खत्म हो चुकी होंगी, उनके सीखने का समय ही जा चुका होगा, और वो गलत चीजें सीख चुके होंगे। उस जिंदगी को संवारने के लिए जो फॉग से एंडलेस नाइट में बदल जाती है, और वी कैन से अनसर्टेनिटी से दुख में बदल जाती है, नए खत्म होने वाले दुख में बदल जाती है, वो उस जिंदगी के लिए चोरी करेंगे। क्यों? आफ्टर वॉचिंग दीज पिक्चर्स ऑफ शेक्सपियर, आफ्टर वॉचिंग दीज ब्यूटिफुल सीनरीज, they would also get wishes, and they would try to fulfill their wishes by stealing, by robbing, by committing crimes on their slag heap. Slag heap, what is it? Slag heap is the waste, कचरा, dirty means एक कचरे का ढेर। बट slag heap here is here has been used for their body। उनकी बॉडी इतनी कमजोर हो चुकी है कि उसको स्लैग हीप के साथ कंपेयर कर दिया गया। सो हेयर अगेन वी हैव मेटाफर। दी चिल्ड्रन वेयर स्किन्स पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। अब उस कमजोर सी बॉडी पर, जो बड़ी कमजोर है, उस बॉडी के ऊपर वो स्किन पहनते हैं। व्हाट इज इट? इट इज वेरी पथेटिक। पीप्ड थ्रू बाय बोन्स मीन्स राइटर वॉन्ट्स टू से, ऐसा लगता है कि उन्होंने स्किन को पहन रखा है और उनकी हड्डियां अंदर से साफ दिखाई दे रही हैं, उनकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं। आई वॉन्ट टू शो यू कि कैसे दिखाई दे रही हैं हड्डियां। सो हेयर आई वॉन्ट टू गेट इट अगेन। दीज आर द पिक्चर्स, यू कैन सी हड्डियां कैसे दिखाई दे रही हैं उन बच्चों की। दे वेयर स्किन पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, पीप्ड थ्रू बाय बोन्स। So these children are in a very miserable condition, and they wear spectacles
ऑफ स्टील विद मेंडेड ग्लास। सो उनके जो स्पेक्टिकल्स उन्होंने पहन रखे हैं वो स्टील फ्रेम से बने हुए हैं, और उनका ग्लास जो है वो मेंडेड है, मीन्स अपने आप रिपेयर कर रखा है। दे डोंट हैव सो मच मनी दैट दे कैन गेट इट रिपेयर्ड, एंड इट इज लुकिंग लाइक bottle bits on stones, bottle bits on stone, like bottle bits on stone. This is simile here. We are comparing bottle bits, them, the spectacles, like bottle bits on stone, and we are comparing the children also with bottle bits on stone. जैसे कि stone के ऊपर bottle के bits टूटे हुए पड़े हुए होते हैं ना, तो these children are like are broken like these bottle bits, so they are completely broken. All of their time and space are foggy slum. टाइम एंड स्पेस, उनका पूरा समय और उनका पूरा स्पेस फोगी स्लम है। व्हाई इज इट कंपेयर्ड विद फोगी स्लम? टाइम एंड स्पेस हैव बीन कंपेयर्ड विद फोगी स्लम, मेटाफर, बट लाइक और एज यूज नहीं किया, सो इट इज मेटाफर। अगर लाइक और एज होता तो सिमली होता। फोगी स्लम इज दैट, मीन्स ये जो स्लम है ना ये फोगी है, एंड फोग, यू नो व्हाट इज द सिंबल ऑफ फॉग? फॉग इज द सिंबल ऑफ अनसर्टेनिटी, फॉग इज द सिंबल ऑफ होपलेसनेस। तो उनकी ज़िंदगी में कोई होप नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, अनसर्टेन है। सो ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। हेयर द पोइट इज एंग्री, इज फुल ऑफ एंगर, एंड व्हाट डज ही सजेस्ट? कि ब्लोट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। जो मैप इनकी क्लासरूम में लगा रखे ना, उन मैप्स में स्लम्स बना दो बड़े बड़े। एज बिग एज डूम मीन्स इट इज द सिमिली हेयर। स्लम्स कैसे हों? एज बिग एज डूम। डूम मीन्स डिजास्टर, हम कह सकते हैं विनाश। मीन्स ऐसा हो जैसे कि चारों तरफ तबाही आ चुकी है, ऐसे बड़े बड़े स्लम्स बना दो। इनके इनके मैप्स में भी स्लम्स दिखाई देनी चाहिए, ये सुंदर सुंदर सिटीज नहीं दिखाई देनी चाहिए। तो गुस्से में है। अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर, हेयर वी हैव एंटी क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स वो होता है जिसमें असेंडिंग ऑर्डर होता है, बट अगर डिसेंडिंग ऑर्डर हो तो उसको एंटी क्लाइमेक्स बोलते हैं। गवर्नर से इंस्पेक्टर पे आई बात और इंस्पेक्टर से विजिटर पे आई, तो क्या है? ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसी इट इज एंटी क्लाइमेक्स। तो जब तक गवर्नर, इंस्पेक्टर और विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो। मैप को विंडो बना दो, मेटाफर। मैप ही विंडो, मेटाफर है। ये क्या कहना चाहता है? जब तक ये मैप विंडो नहीं बनता ना, जैसा मैप में दिखाई दे रहा है वैसा इस विंडो में से दिखाई नहीं देता। मीन्स मैप का नज़ारा और विंडो का नज़ारा सेम होना चाहिए। जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मैप में दिखाई दे रही हैं उतनी ही अपॉर्चुनिटी विंडोज़ से दिखाई देनी चाहिए। मीन्स इनकी स्लम की कंडीशन जो है, ये आउटसाइड डर्टी दिखाई दे रहा है, ये लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही है, गरीबी दिखाई दे रही है, बंद हो। खिड़की से भी वही नज़ारा दिखाई देना चाहिए, सेम कंट्रास्ट नहीं होना चाहिए। अनलेस द मैप बिकम्स देयर विंडो एंड दीज विंडोज, और ये विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकम्स। व्हाट इज कैटाकम्स? कैटाकम्स जो है, लाइक कैटाकम्स, पहले तो ये बताइए कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? विंडो को कंपेयर किया है कैटाकम्स से। कैटाकम्स एक ग्रेवयार्ड होता है, और वो क्या होता है? अंडरग्राउंड होता है, जमीन के अंदर तहखाना होता है, और उस तहखाने के अंदर बहुत सारी कब्रें होती हैं अंदर। और कहाँ वहाँ पर आपको पता है, जब अंदर गुफा में ज़मीन के अंदर जा कर के अगर कब्रें गाड़ रखी हैं बहुत सारी, वो कैसी कंडीशन में होगी? वहाँ पर कोई वेंटिलेशन तो होगा नहीं। और इनके होम्स, इनकी विंडोज़ को ऐसे ही कैटाकोम से कंपेयर किया है। मीन्स वे देर इज़ नो वे टू गेट आउट ऑफ इट। ये मुर्दों की तरह यहाँ पर कैद हैं। देर इज़ नो वेंटिलेशन, देर इज़ नो अपॉर्चुनिटी फॉर देम। ये विंडोज़ जो उनके ऊपर बंद हो गई हैं, दैट सट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटाकॉम्स। Again the poet is angry. Break or break. Here we have repetition. Break or break. Open till they break the town. What does the poet want to say here? भाई ये जो आपने लिमिटेशंस बना रखी है ना, ये रिस्ट्रिक्शंस बना रखी हैं आपने सोसाइटी को, दो इनको इनको बिल्कुल सोसाइटी से कट करके अलग रख दिया है। दे हैव बीन थ्रोन ऑफ फ्रॉम द सोसाइटी लाइक वीड्स। खरपतवार की तरह जो इनको उखाड़ के फेंक दिया है ना, और इनकी रिस्ट्रिक्शंस बना दी हैं, इनको लिमिट में कर दिया है। ये बाउंड्री जो बाउंड्रीज के बाहर इनको कर दिया है। ब्रेक कर दो इन बाउंड्रीज को। ब्रेक और ब्रेक टिल दे ब्रेक द टाउन। कहीं ऐसा ना हो कि टाउन को ब्रेक कर दे, कहीं ये सोसाइटी को ब्रेक कर दे। यही लोग हैं दैट इफ यू डोंट गिव देम देयर राइट्स, इफ यू डोंट गिव देम अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो,
they will break the town, they will become a big problem for the society. He is trying to say that you should take your fellow beings with you on the way of progress. You should not leave them behind, otherwise they will create problem for you. They will break your town, they will be a big hindrance in the way of your happiness. And show the children to green fields. इन बच्चों को यहाँ से इन इन स्लम्स से बाहर निकालो और इनको दिखाओ ग्रीन फील्ड्स and make their world run azure on gold sand. Azure means sky color on gold sands. What does the right poet want to say here? कि इनको खुले आसमान के नीचे सुनहरी रेत पर लेके जाओ, इनको नेचर की गोद में लेके जाओ, इनको इन स्लम से बाहर निकालो, इनको कैद क्यों कर रखा है यहाँ पर? ग्रीन फील्ड्स दिखाओ, सुनहरी रेत पे लेके जाओ, नीले आसमान के नीचे लेके जाओ, एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, और उनकी टंग्स को बुक्स में नेकेड रन करने दो. मीन्स give them the freedom to speak, give them the freedom to read in their own language, and give them the freedom of getting the real education. What white and green leaves? What is this? White and green leaves, these are metaphors. White leaves means books, green leaves means nature, means they should be given the opportunity to read from books as well as from nature. Open history, leaves open, history theirs, history is theirs. हिस्ट्री वही क्रिएट करते हैं whose language is the sun, whose language is the sun. लैंग्वेज को सन से कंपेयर किया है विदाउट यूजिंग एज एंड लाइक, सो वी हैव मेटाफोर हियर. सो यहाँ पर पोएट वो कहना चाहता है कि हिस्ट्री वही बनाते हैं जिनकी लैंग्वेज सन होती है, मीन्स जिनकी लैंग्वेज फुल ऑफ लाइट होती है, फुल ऑफ फ्रीडम होती है. दे हैव द फ्रीडम टू स्पीक, स्वर्णिम जिनकी भाषा होती है. एंड यू नो व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू से हियर, दैट these children should be given opportunities to grow in their lives. They should be given real education, they should be given the chances to come out of their poverty, and they should be helped by the society. And it is the duty of governor, inspector, political officers, as well as